جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ کی ویڈیو میں آپ نے یہ دیکھا تھا، یہ سماعت فرمایا تھا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ گزشتہ کی ویڈیو میں آپ نے سماعت فرمایا دیکھا۔ آج کی مختصر ویڈیو میں میں ان باتوں کو بیان کروں گا کہ جس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ بعض وقت مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ کام کرنے سے میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا، کہیں یہ ہو گیا ہے مجھ سے میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا۔ تو اسی لیے جہاں پر روزہ ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے ان کا جاننا ضروری ہے، وہیں پر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آج کی ویڈیو میں میں یہی بتاؤں گا کہ کن باتوں سے روزہ ہمارا ٹوٹتا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو یہ کہ روزے کی حالت میں ہم روزہ ہے لیکن ہم بھول چکے ہیں کہ ہم روزہ ہیں، روزہ ہونا ہمیں یاد نہیں ہے، بلکہ بھول کر ہم کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں یا جماع کرتے ہیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ہمیں یاد نہیں کہ وہ روزہ ہے، ہم روزہ ہیں یہ بھول چکے ہیں، اور بھولے سے ہم نے کھا لیا، پی لیا یا جماع کر لیا تو اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس بات کا خیال رکھیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اور سحری سے پہلے کسی پر غسل واجب ہو گیا ہے لیکن وہ بغیر غسل کیے کہ پورا دن تمام گزار دیتا ہے تو اس کا روزہ تو ہو جاتا ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ غسل نہ کرنے کی وجہ سے پوری نمازیں گنوانے کا جو گناہ ہوتا ہے اس پر وہ ہوگا، اس کو عذاب بھگتنا پڑے گا نمازوں کے چھوڑنے کا، لیکن روزہ اس کا ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور تل ہو یا تل کے برابر کوئی چیز ہو حلق کے نیچے چلی جاتی ہے، نگل لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ہمارا ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو تب ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں یاد رکھیں۔ اور دوسری چیز، آج عام طور پر پریشان ہو جاتا ہے مسلمان، سر میں تیل لگاتے ہی پریشان ہو جاتا ہے یا کوئی کام کرتے ہی پریشان ہو جاتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ سر میں تیل لگانے سے یا سرما لگانے سے آنکھوں میں روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، سر میں تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ تیل کا یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس بھی ہو رہا ہے تو تب بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دے، ہم نے تھوک دیا اور اس تھوک میں سرمے کا رنگ بھی نظر آ رہا ہے تو تب بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس کے علاوہ سر کے بال بنانے سے، سر کے بال کٹانے سے یا جسم میں جہاں کہیں بھی زائد بال ہو جس کو نکالنے کا شریعت حکم دیتی ہے، جیسے بغل کے بال ہو یا زیر ناف جو منہ زیر ناف جو بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو نکالنے سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چاہے سر کے بال نکالے، چاہے بغل کے بال صاف کرے یا زیر ناف جو بال ہوتے ہیں انہیں صاف کرنے سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عام طور پر پریشان ہو جاتے ہیں، نوجوان سوال کرتے ہیں کٹنگ بناتے روزہ چلے جاتا کیا، یہ کرتے روزہ چلے جاتا کیا؟ تو بال بنانے سے بھی روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس کے علاوہ مکھی ہو یا گرد ہو یا دھواں ہو، اس کو بھی اگر ہم سونگھ لیتے ہیں، مکھی حلق سے نیچے چلی جاتی ہے یا غبار حلق کے اندر چلا جاتا ہے یا دھواں ہم لے لیتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، جو علماء ارشاد فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ غبار جو
आटे की गिरनी वगैरह में होता है, जब जवार या गेहूं वगैरह जो भी चीज़ पीसी जा रही हो उसका जो गुबार होता है वो भी अगर हलक के अंदर चला जाए तो हमारा रोज़ा नहीं टूटता। चाहे मक्खी निगल ले या गर्द हलक में चले जाए या आटे वगैरह का गुबार जो है हलक के नीचे चला जाए तो उससे भी हमारा रोज़ा नहीं टूटता। और रोज़े की हालत में सर में हो या दाढ़ी में हो अगर कोई शख्स मेहंदी लगाता है तो उसका भी रोज़ा नहीं टूटता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन मसाइल का जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने पहले भी इरशाद फरमाया था कि जब भी जो भी इबादत कर रहे हैं उनके इबादत के मसाइल जानना ज़रूरी है, और मसाइल जानने के बाद अगर हम सही तरीके से अमल करते हैं तो वो इबादत हमारी काबिल कबूल होती है। नमाज का वक्त आए, नमाज के मसाइल जानना ज़रूरी है। रोज़े का वक्त आए, रोज़े के मसाइल जानना ज़रूरी है। ज़कात देने का साहिब निसाब है तो ज़कात के मसाइल का जानना ज़रूरी है। अगर हम हज हम पर फ़र्ज हो गया है तो हज के मसाइल जानना ज़रूरी है। तो लिहाजा रोज़ा जिन चीज़ों से नहीं टूटता, आप इन चीज़ों का हमेशा दिलो दिमाग में रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप किसी जहनी खलिश में मुब्तला नहीं होंगे। एक और चीज़ है, रोज़े की हालत में अगर चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको अगर नींद में एहतिलाम हो जाता है तो उससे भी रोज़ा उसका नहीं टूटता। पानी नहाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। आमतौर गर्मी का मौसम है, जैसे इन दिनों चल रहा है, चिलचिलाती धूप है, दोपहर के वक्त सख्त गर्मी है, तो थोड़ा सा ठंडक पहुंचाने के लिए अगर हम पानी भी नहाते हैं रोज़े की हालत में तो रोज़ा हमारा नहीं टूटता। गुज़िश्ता की वीडियो में मैंने ये बताया था कि सिगरेट हो, अगरबत्ती हो या अतर वगैरह का जो भी खुशबू है, सिगरेट का धुआं जानबूझ कर खींचते हैं तो रोज़ा टूट जाता है। अगरबत्ती का या अतर की खुशबू नाक के करीब करके खींचते हैं तो रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर दूर से अगरबत्ती का धुआं महसूस हो रहा है, खुशबू महसूस हो रही है, तो सिगरेट का धुआं भी महसूस हो रहा है, तो उससे रोज़ा हमारा नहीं टूटता। और रोज़े की हालत में मुसलमान वज़ू कर रहा है, लेकिन वज़ू कर रहा है तो गलती से पानी हलक में चला जाए या नाक में पानी चढ़ाते वक्त दिमाग तक पहुंच जाए, जिससे एक किस्म की तेज़ी महसूस होती है नाक में, लेकिन उस वक्त अगर उसको रोज़ा होना भूल जाता है, यानी रोज़ा है, मुसलमान को ये याद नहीं है कि मैं रोज़ा हूँ, लेकिन वो वज़ू कर रहा है, नाक में पानी ऊपर तेज चढ़ाते वक्त दिमाग तक पहुंच जाए या हलक में पानी के खतरे उतर जाए तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। क्यों? कि उसको रोज़ा रहना उसका याद नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और अगर रोज़े की हालत में कोई खौफ खुदा में रो रहा है या किसी वजह से भी रो रहा है, एक दो आंसू हैं अगर उसके हलक में पहुंच जाए तो रोज़ा उसका नहीं टूटता। लेकिन ज़्यादा कसीर तादाद में आंसू हैं, हत्ता के आंसुओं की जो नमकीनी होती है, नमकीनापन होता है, हलक में महसूस हो रहा है, तो तब उसका रोज़ा टूट जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और बेइख्तियार खय हो गई, इख्तियार नहीं बेइख्तियार खय हो गई, थोड़ी हो या ज़्यादा, इससे रोज़ा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों नहीं टूटता। बेइख्तियार खय, थोड़ी हो या ज़्यादा, इससे रोज़ा आपका नहीं टूटता। और आम तौर पर बहुत से लोग इस मसले में गलतफहमी में मुब्तला हैं कि इंजेक्शन लेते ही रोज़ा टूट जाता है, मालूमात की कमी की वजह से। लेकिन उलमा इरशाद फरमाते हैं रोज़े की हालत में चाहे रग में इंजेक्शन दे या गोश्त में इंजेक्शन दे, इंजेक्शन लेने से रोज़ेदार के रोज़े पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और रोज़ा उसका नहीं टूटता। और रोज़े की हालत में मंजन हो, कोयला हो और पेस्ट हो, इसको इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि उलमा इरशाद फरमाते हैं मंजन का हो या पेस्ट का हो या कोयले का हो, कुछ ना कुछ ज़र्रात या कुछ ना कुछ असर हलक में जाने का अंदेशा है, जिसकी वजह से रोज़ा टूटने का अंदेशा होता है। इसीलिए रोज़े की हालत में मंजन हो, कोयला हो, पेस्ट हो, इसको इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। और इसकी जगह आप रोज़े की हालत में मिसवाक कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि मिसवाक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मिसवाक रोज़े की हालत में हम कर सकते हैं। मिसवाक करने से हमारे रोज़े में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। और एक चीज़, खुशबू भी लगा सकते हैं, हल्की खुशबू अगर आप कपड़ों पर लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन खुशबू
अपने नाक के नीचे करीब करके उसको आमदन ना खींचे, जिसकी वजह से रोज़ा टूटने का अंदेशा होता है। और एक बात, जैसे गर्मी का मौसम है जो इन दिनों चल रही है, सख्त गर्मी है, परेशान है यहाँ, तो कोई मुसलमान अगर ठंडक पहुंचाने के लिए कोई कपड़ा गीला करके तर करके अगर अपने सर पर रखना चाहे तो भी रख सकता है, या तर कपड़ा करके गीला कपड़ा करके अपने बदन के ऊपर लपेटना चाहता है ताकि बदन को ठंडक महसूस हो, रोजे की तकलीफ कुछ कम हो, तो ये कर सकते हैं। इससे रोजा आपका नहीं टूटता। और अपना थूक जो मुंह में होता है, हमेशा अपना थूक निकलने से भी रोजा नहीं टूटता। और इसके अलावा वजू करने के बाद वगैरह जो तरी जबान पर रहती है, गीलापन जबान पर रहता है, उसको भी अगर हम निगल लेते हैं तो वजू हमारा नहीं टूटता। लेकिन उलमा फरमाते हैं ज्यादा थूक जमा करके ये निकलने से परहेज करना चाहिए। आखिरी एक बात ये है कि बाद हमारी माँ बहनें होती हैं जिनके शौहर बहुत जालिम होते हैं कि सालन में नमक ज़्यादा हो जाए या खाने में नमक ज़्यादा हो जाए या मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। वैसी ख़वातीन नमक को चखने के लिए, सालन का जायका चखने के लिए अपनी ज़बान पर थोड़ा सा सालन रख के आप बाहर थूक दें ताकि उसका मज़ा मालूम हो जाए, लेकिन उसका असर हलक में जाने ना पाए। ज़बान पर रख के और उसे थूक दे तो इससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा हो जाता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये कुछ मसाइल थे जो मैंने बयान करना मुनासिब समझा। इन चीज़ों का आप हमेशा दिलो दिमाग में महफूज रखें कि इनमें से कोई चीज़ भी होती है तो हमारा रोज़ा नहीं टूटता। आप तमाम से गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को बिलखुसूस वो सामीन और नाज़रीन जो पहली दफ़े मेरे चैनल पर आए हैं, पहली वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें। और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं और आप समझते हैं कि इन वीडियोस को फैलाने से सदक़े जारिया के तौर पर इल्म दीन में इजाफा हो सकता है, लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है, तो आप सदक़े जारिया के तौर पर मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करने के अलावा कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार करना न भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को, हर मुसलमान को, बिलखुसूस मुझे और आप तमाम नाज़रीन को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और आखा की एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमें माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े पूरे मसाइल को जानते हुए उन पर अमल करते हुए गुजारने की तौफीक अता फरमाए और फ़लस्तीन के मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमाए। और गज़ा में जितने अहले ईमान शहीद हो रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन पर अपना बेपनाह फज़ल व करम फरमाए और इनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाते हुए तमाम शहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमाए। और जितने मुसलमान जेलों में बेकसूर बंद हैं उन्हें बाइज़्ज़त रिहाई के सामान नसीब फरमाए और ख़ातिमा फरमाए। तो हम तमाम का ईमान पर ख़ातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।